हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केप्लर्स लॉ, जो कि ग्रेविटेशन चैप्टर में है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं केप्लर्स लॉ। पेज नंबर 3 पे आते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं केप्लर्स लॉ। तो फ्रेंड्स प्लैनेटरी मोशन, अब ये प्लैनेटरी मोशन होता क्या है? द मोशन परफॉर्म्ड बाय द प्लैनेट इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड प्लैनेटरी मोशन। व्हाट इज मीन बाय प्लैनेटरी मोशन? द मोशन performed by the planets in the universe are called as planetary motion, had been observed by astronomers since ancient times. So the planetary motion had been observed by the astronomers since ancient times. Before Galileo से पहले all observation of planets position were made with naked eyes. गैलीलियो से पहले जितने भी प्लैनेट के पोजीशन हम लोग देखते थे, कैसे देखते थे? खुले आंखों से देखते थे। उस समय तक हम लोग क्या ये यूज़ नहीं करते थे फ्रेंड्स, टेलीस्कोप यूज़ नहीं करते थे प्लैनेट्स को देखने के लिए। सो फ्रेंड्स बिफोर गैलीलियो ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लैनेट्स पोजीशन एंड मोशन वर मेड विथ नेकेड आइज, बट बिफोर गैलीलियो but friends, by the 16th century a lot of data were available about what? About planetary position and motion. So friends, by the 16th century a lot of data were available about planetary motion, कि प्लैनेट कैसे मोशन करता है, कैसे उसका मूवमेंट होता है, उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास अवेलेबल थे। और प्लैनेट का पोजीशन किस वक्त कैसा होगा उसके बारे में भी हम लोग के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास प्रेजेंट था उस समय तक, बाय 16th century. So my dear friends, by the 16th century a lot of data were available about what? About planetary position and motion. So these two terms, planetary position and motion, about these terms we had a lot of information by the 16th century. And friends, Johannes Kepler. Who was Johannes Kepler? The discoverer of Kepler's law. अब ये Johannes Kepler studied this data. Which data? The information about planetary position and motion studied by whom? By Johannes Kepler. So friends, Johannes Kepler studied this data. Which data? Planetary position and motion. He noticed. Who noticed? Johannes Kepler noticed. He saw that the motion of planet, that the planetary motion of planet, or means planetary motion, follows certain laws. Johannes Kepler saw that all the planets in the universe, in our solar system, follow certain laws. And what are the laws? We are going to see this in this chapter, in this video. So friends, he stated 3 laws. ये सब ऑब्जर्वेशन करने के बाद कि मोशन ऑफ प्लैनेट, दैट इज प्लैनेटरी मोशन फॉलो सर्टेन लॉज, ये सब देखने के बाद किसने देखा? जॉहन्स केपलर ने देखा। और ये सब देखने के बाद उन्होंने क्या दिया? 3 लॉज दिए। कितने? ही स्टेटेड 3 लॉज अबाउट व्हाट? अबाउट प्लैनेटरी मोशन आफ्टर ऑब्जर्वेशन एंड स्टडिंग अबाउट द प्लैनेटरी पोजिशन एंड मोशन। सो फ्रेंड्स, दिस आर नोन एज केपलर्स लॉ। अब जो भी लॉ दिए जॉहन्स केपलर ने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स इन लॉज को किसने डिस्कवर किया, किसने बोला ये लॉज? जॉहन्स केपलर ने। सो फ्रेंड्स, दिस 3 लॉज आर नोन एज केपलर्स लॉ, सो विच आर गिवन बिलो, एंड वी आर गोइंग टू सी दिस नाउ. So friends, planetary motion had been observed by the astronomer since ancient times. Before Galileo, all observation of planets' position were made with naked eyes. By the 16th century, a lot of data were available about planetary position and motion. Johannes Kepler studied this data. He noticed that the motion of planet follows certain laws. He stated 3 laws describing what? Describing planetary motion. And these laws are known as Kepler's law, which are given below. So friends, we are going to see the 3 laws which are given by whom? By Kepler, by Johannes Kepler. So friends, let us study the introduction of Johannes Kepler, which is given on page number 4. चलिए हम लोग पेज नंबर 4 पे आते हैं ये 3 लॉ पढ़ने से पहले। तो फ्रेंड्स, on introduction to scientist, Johannes Kepler was born in 1571 and died in 1630. Was a German astronomer. कौन से कंट्री के थे? He was from Germany. He was a German astronomer and a mathematician. He was German astronomer and mathematician both.
He started working as a helper to the famous astronomer Tycho Brahe. He started he started working as a helper in the lab of Tycho Brahe. It is an important name. Tycho Brahe, famous astronomer who Brahe in Prague in 1600. He started working as a helper to the famous astronomer Tycho Brahe in Prague in 1600 after the sudden death of whom? Brahe. After the sudden death of Brahe. ब्राही का सडन डेथ के बाद क्या हुआ वो हम लोग को देखना है. आफ्टर द सडन डेथ ऑफ ब्राही इन 1601 केपलर वॉज अपॉइंटेड एज द रॉयल मैथमेटिशियन. आफ्टर द डेथ ऑफ ब्राही, केपलर वॉज अपॉइंटेड एज द रॉयल मैथमेटिशियन. इन हिज प्लेस, उसके जगह पे रॉयल मैथमेटिशियन कौन बने? जॉनेस केपलर बने. सो केपलर यूज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्लानिटरी पोजिशन. सो अभी उन्होंने क्या किया? केपलर ने स्टडी किया प्लानिटरी पोजिशन, जिसको पहले से टाइको ब्राही ने डिस्कवर करके रखा था. फ्रेंड्स, केपलर यूज द ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लानिटरी पोजिशन मेड बाय हुम? मेड बाय ब्राही टू डिस्कवर द लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन. और उसी प्लानिटरी पोजिशन को स्टडी किया जो कि ब्राही ने डिस्कवर करके रखा था. और उसी में से क्या निकाला फ्रेंड्स? केपलर ने 3 लॉज निकाले. सो फ्रेंड्स, टू डिस्कवर द लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन ही रोट सेवरल बुक्स. Who wrote several books? Kepler wrote several books. His work was later used by whom? By Newton in finding his laws of gravitation, in postulating his laws of gravitation. So friends, उन्होंने बहुत सारे बुक लिखे जॉनेस केपलर ने, और उन्हीं बुक्स को पढ़ के न्यूटन ने को हेल्प मिला सर न्यूटन को कि लॉज ऑफ ग्रेविटेशन उनको खोज सके. तो फ्रेंड्स, यहाँ तक था इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट. अभी हम लोग देखते हैं फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ. धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. सो फ्रेंड्स, अभी आप एक इमेज देख सकते हो, एनिमेशन देख सकते हो. वो एनिमेशन आप 2 सेकंड के लिए देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं. तो ये एनिमेशन देखने के बाद आपको क्या मालूम चलता है फ्रेंड्स? क्या देखा? एनिमेशन देखा जिसमें एक प्लैनेट है, वो सन के अराउंड क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है. तो ये एनिमेशन देखने के बाद हम लोग आते हैं फर्स्ट लॉ पे. अभी फर्स्ट लॉ क्या है? सी फ्रेंड्स, द ऑर्बिट. मतलब आप जब आपने देखा एनिमेशन, उसमें एक प्लैनेट देखा आपने, और उसमें क्या देखा? सन. जो प्लैनेट था वो सन के अराउंड क्या कर रहा था? रिवॉल्व कर रहा था. अब जो प्लैनेट था वो जब वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था, एक पर्टिकुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा था. आपने एक लाइन देखा होगा, एक इलिप्टिकल लाइन देखा होगा. ठीक है फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, द ऑर्बिट मीन्स द पाथ ऑन विच द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन. सो आपने एनिमेशन में देखा था एक लाइन जिस पे एक प्लैनेट मूव कर रहा है और क्या कर रहा है? सन के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहा है. सो फ्रेंड्स, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, ऑफ एनी प्लैनेट, द ऑर्बिट ऑफ एनी प्लैनेट इज एन एलिप्स. एलिप्स मतलब अंडाकार शेप, ओवल शेप. किसी भी प्लैनेट का ऑर्बिट कैसा होता है? एलिप्स होता है, अंडाकार होता है. तो यही फर्स्ट लॉ है. विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई. अभी आप देखो दूसरा इमेज देखो. दूसरा इमेज में क्या है? एक इलिप्टिकल क्या है फ्रेंड्स? एक एलिप्स ऑर्बिट है जिसमें एक प्लैनेट सन बीच में है, और उस सन का पोजीशन क्या दिया हुआ है? फोकस दिया हुआ है. तो फ्रेंड्स, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स. ये यहाँ तक समझ में आ गया. विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई. फोकाई का मतलब क्या होता है? फोकस. आप सन का एक जहाँ सन प्लेस्ड है वहाँ पे एक टर्म देख सकते हो, फोकस, और सन के सामने एक और टर्म है, फोकस. सो फ्रेंड्स, कुल मिला के एक एलिप्स ऑर्बिट में 2 फोकस होते हैं, और उन दोनों फोकस में एक फोकस पे क्या प्रेजेंट होता है? सन. तो दूसरा फोकस एम्प्टी होता है. हमेशा याद रखना, एलिप्स ऑर्बिट के अंदर में 2 फोकस होते हैं और एक फोकस में सन प्रेजेंट होता है. तो यही है फ्रेंड्स फर्स्ट केपलर्स लॉ. क्या है? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स with the sun at one of the foci. Foci means focus, and there are 2 focus in an ellipse orbit. In which orbit? In an ellipse orbit, and the sun will be present at one of the foci, means one of the focus. So the orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. So friends, यहाँ तक केपलर्स लॉ फिनिश हो गया. केपलर्स लॉ का फर्स्ट लॉ फिनिश हो गया. अब केपलर्स सेकेंड लॉ क्या है? अभी आप दूसरा इमेज देख सकते हो. अभी क्या बताता है? द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट. एक लाइन है जो सन को और प्लैनेट को ज्वाइन कर रहा है, वो हाईलाइटेड भी है. फ्रेंड्स, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया. मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है और उस
पॉइंट तक कितना एरिया कवर करता है। द लाइन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। सो फ्रेंड्स, एक पॉइंट से प्लैनेट स्टार्ट हुआ मूव करना और दूसरे पॉइंट तक गया, तो उस पीरियड ऑफ टाइम में इतना एरिया कवर हुआ, तो सेम पीरियड ऑफ टाइम में दूसरी जगह का उतना ही एरिया कवर होगा उसी प्लैनेट के हेल्प से या द्वारा, उसी बाय दैट प्लैनेट ओनली। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेकेंड लॉ क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। सो फ्रेंड्स, आप दो जगह देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एरिया लिखा हुआ है फ्रेंड्स, और दूसरी जगह पे भी एरिया लिखा हुआ है। तो यहाँ का एरिया और वहाँ का एरिया दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों को एरिया को कवर करने के लिए सेम टाइम लगा है। इधर सपोज डैट इधर 2 मिनट लगा है, तो उधर भी 2 मिनट ही लगा हुआ होगा इतना एरिया कवर करने में। सपोज डैट यहाँ पे 2 स्क्वायर किलोमीटर कवर हुआ एरिया, तो वहाँ पे भी 2 स्क्वायर किलोमीटर कवर होगा एरिया 2 मिनट में। ठीक है फ्रेंड्स, सो द प्लैनेट कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। सपोज दैट इधर 2 मिनट लगा है इतना एरिया कवर करने में, तो उधर भी इतना एरिया, सेम एरिया 2 स्क्वायर किलोमीटर कवर करने में 2 ही मिनट लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको सेकेंड लॉ समझ में आ गया। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं, केप्लर्स थर्ड लॉ। Kepler's third law is little bit complex, but we have to see. So friends, अभी आप सन देख सकते हो और प्लैनेट देख सकते हो, उनके बीच दूरी भी देख सकते हो। सन और प्लैनेट के बीच में दूरी होता है, और ये जो दूरी होता है, जो डिस्टेंस होता है सन और प्लैनेट के बीच में, ऑर्बिट में हमेशा चेंज होते रहता है। कभी वो सन और प्लैनेट एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, कभी प्लैनेट सन के बहुत दूर चला जाएगा। लेकिन ये हो गया डिस्टेंस हमेशा वेरिएशन करता है, मतलब वेरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है किसी भी प्लैनेट का उसके सन के साथ डिस्टेंस हमेशा डिफरेंस रहता है, हमेशा डिस्टेंस में वेरिएशन रहता है। फ्रेंड्स, सेकेंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। क्या है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मीन्स एक प्लैनेट है जो सन के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। जब उसी प्लैनेट का सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा, मतलब एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर ख़त्म हो जाएगा, जब एक पॉइंट से एक प्लैनेट सन का अराउंड चक्कर लगा रहा है और उसी पॉइंट पे आके रुक जा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग 1 रेवोल्यूशन। तो 1 पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन। द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट to revolve around the sun to take 1 revolution। ठीक है, a period of revolution means the time taken by a planet to complete 1 revolution। the time taken by a planet to complete 1 revolution। So friends, the square means square of the period of revolution means the time taken by a planet to complete 1 revolution around the sun। so the square of its period of revolution around the sun of the square of period of revolution around the sun of any planet is directly proportional to the cube of the mean distance। तो जो सन और प्लैनेट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा डिफरेंस रहता है, कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। तो उसका जो मीन डिस्टेंस होगा, एवरेज डिस्टेंस होगा प्लैनेट और सन के बीच में, उसका क्यूब विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेम प्लैनेट, टू द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द सेम प्लैनेट। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड लॉ क्या है, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन दैट प्लैनेट एंड द सन। सो दिस इज द थर्ड लॉ। सो फ्रेंड्स, इसका एक फॉर्मूला भी है, तो चलिए, दस इफ आर इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट। अभी क्या है, एवरेज डिस्टेंस समझ लो आर है, सन और प्लैनेट के बीच में जो दूरी है उसको आप समझ लो आर दूरी है। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन सपोज बी आर। इफ आर इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड टी, व्हाट इज द टी? टी मीन्स टाइम टेकन। टी इज इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब इतना टी के समय में इतना एक रेवोल्यूशन किया है प्लैनेट ने। सो एक प्लैनेट को एक रेवोल्यूशन करने में कितना समय लगा है, टी समय लगा है, और एवरेज डिस्टेंस क्या है, आर। तो फार्मूला के अनुसार में क्या होगा उसका फार्मूला, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फार्मूला क्या होगा, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। टी हो गया पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन,
तो उसका स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर हो गया एवरेज डिस्टेंस टू द क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, मैं इसके ऊपर में एक शॉर्ट समरी वाला वीडियो अपलोड करूँगा फ्रेंड्स। एकदम शॉर्ट रहेगा वो वीडियो, एकदम रिविजन टाइप में रहेगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। आपको केपलर्स लॉ में कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो कमेंट करो, मैं उसका आंसर बहुत ही जल्द दूंगा। देखने के बाद और इस वीडियो में तो आपका डाउट क्लियर हो ही गया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट इट, share with your friends, and thank you for watching till end. Goodbye. Jai Hind.